अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। वजीर आला रेवंत रेड्डी का DSC 2024 की तकरीब में इजहार ख्याल। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी का बीजेपी के इंतखाबी मुजाहरे पर बयान। शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे में बम की झूठी इत्तला से सनसनी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर इंतखाबात के नताइज, उदित राज का बयान। हिजबुल्लाह के जानिब से इजराइल पर गोलों की बारिश, IDF की रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रतन टाटा के इंतकाल पर गहरे सदमे और गम का इजहार किया है। उन्हें हिंदुस्तान के अजीम सनतकारों में शुमार किया जाता था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक पोस्ट में कहा कि रतन टाटा की जिंदगी एक बसीरत वाले लीडर और एक इंसानी दोस्त की मिसाल है, जिनकी क़यादत ने टाटा ब्रांड को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। उनकी गैर मामूली क़यादत ने न सिर्फ हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र महसूस करवाया, बल्कि उन्हें आलमी सनाती ताकत में तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया। उनकी मौत से न सिर्फ हिंदुस्तान ने एक रहनुमा खो दिया है, बल्कि एक ऐसा शख्स भी खो दिया है जो खिदमत और दियानत का हकीकी मुजस्समा था। वज़ीर आला ने टाटा खानदान और इन तमाम हिंदुस्तानियों के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया है जो इस अजीम नुकसान पर गमज़दा है। उन्होंने ये भी कहा है कि रतन टाटा के ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने DSC 2024 असातिज़ा की भर्ती के सिलसिले में तकसीम असनादात के तकरीब में खिताब करते हुए कहा है कि लगता है कि दशहरा का त्यौहार पहले ही आ गया है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि तेलंगाना को गुज़िश्ता 10 साल में कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि एक शख्स को 2 बार वज़ीर आला बनाया गया, मगर बेरोजगारी का मसला हल नहीं हो सका। वज़ीर आला ने याद दिलाया कि 2017 में DSC का नोटिफिकेशन, जो कि तेलंगाना की क़यादत के क़याम के फौरी बाद जारी होना था, 3 साल की ताख़ीर के बाद आया और 2019 की तकर्रुरिया नोटिफिकेशन की 2 साल बाद अमल में आए। उन्होंने मजीद कहा कि हमने वादा किया था कि आपको नौकरियां तभी मिलेंगी जब बाप बेटे की नौकरियां खत्म हो जाएगी। ఏ నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించాలనో ఆ సమస్యను పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేయలేదు, కాలయాపన చేసిండు. నేను అన్ని శాఖల జోలికి వెళ్ళను, కానీ విద్యాశాఖకు సంబంధించే 2 ఉదాహరణలు చెప్పదలుచుకున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత మొట్టమొదటి DSC నోటిఫికేషన్ 2017లో ఇవ్వడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం వెంబడే వెంబడే ఇవ్వాల్సిన నోటిఫికేషన్ 3 ఏళ్ల తర్వాత ఇచ్చిండు. 2017లో ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ నియామకాలు చేపట్టడానికి 2019 సంవత్సరం వచ్చింది. నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన 2 ఏళ్ల తర్వాత మొదటిసారి తెలంగాణలో టీచర్ల నియామకాలు జరిగినాయి. కానీ నేను 2023 ఎన్నికల సందర్భంగా తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో పేద ప్రజలను కలుస్తూ, నిరుద్యోగ యువకులను ఓదారుస్తూ, విద్యార్థి ఉద్యమాలు నిర్వహించిన వాళ్ళను, వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒకే ఒక్క మాట నేను చెప్పిన, అయ్యా 10 ఏళ్ళు ఓపిక పట్టిండ్రు, 2 సార్లు అవకాశం ఇచ్చిండ్రు, అయినా మీ నిరుద్యోగ సమస్యను తీర్చలేదు, మీకు ఉద్యోగాలు రాలేదు. కాబట్టి ఈసారి నా మాట వినండి, ఇందిరమ్మ రాజ్యం దండి, మార్పు కావాలి, కాంగ్రెస్ రావాలి అని ఏ నినాదం అయితే కాంగ్రెస్ తీసుకున్నదో మీరందరూ ఆ దారిలో నడిచి, ఆ రోజు నేను ఒక మాట చెప్పిన, మీకు ఉద్యోగాలు రావాలంటే కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీష్ రావు, కవిత ఉద్యోగాలు ఊడాలి అని చెప్పిన. ఆనాడు బట్టి విక్రమార్క గారి మా విజ్ఞప్తి మేరకు తండ్రి కొడుకుల కొలువులు ఊడగొడితే మీకు కొలువులు వస్తాయని మాట ఇచ్చినాం. మాట ప్రకారం మీరే మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలతో సమానంగా పోటీ పడి ఇల్లు తిరిగి ప్రతి తలుపు తట్టి ప్రతి గుండెకు చేరి ఈసారి కాంగ్రెస్ రావాలి అని మీరు భుజాల మీద బాధ్యత తీసుకున్నారు. కాబట్టి ఇదే ఎల్బీ స్టేడియంలో డిసెంబర్ 7, 2023 నాడు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు
మేమందరం ఈ వేదిక మీద ఉన్న మిత్రులందరం ముఖ్యమంత్రిగా మంత్రిగా మేము ఉద్యోగ ప్రమాణం చేసినాం. మీరు అండగా నిలబడి మీరు కొట్లాడి మీరు కాంగ్రెస్ను గెలిపిస్తే మాకందరికి కొలువులు వచ్చినాయి. మరి మాకు కొలువులు వచ్చినప్పుడు మా బాధ్యత మేము నిర్వహించాలన్న ఆలోచనతోటి డిసెంబర్ 9, 2023 నాడు మొదటి శాసనసభ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి 60 రోజుల్లో 30,000 ఉద్యోగ నియామకాలు చేపట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న నిరుద్యోగ సమస్యను తుదముట్టించాలని 90 రోజుల్లో 30,000 కొలువులు ఇదే ఎల్బీ స్టేడియంలో ఎక్కడైతే మేము ప్రమాణ స్వీకారం చేసి బాధ్యత తీసుకున్నామో అక్కడే 90 రోజుల్లో 30,000 తెలంగాణ నిరుద్యోగ యువకులకు ఉద్యోగ పట్టాలిచ్చి मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की मुतासिरकुन मुजाहिरे को तारीखी करार देते हुए कहा है कि आवाम ने एक बार फिर जम्मू को कांग्रेस मुक्त बनाया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि मौजूदा इंतखाबात में बीजेपी की नशिस्तें अब तक के बुलंद तरीन सतह पर हैं। किशन रेड्डी ने कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी के तबसरों का हवाला देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी के कारकुनों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एतमाद को खत्म करने की नापाक कोशिश की, मगर आवाम ने इन कोशिशों को नाकाम बना दिया। कोई पार्टी को नहीं आया। हम चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, एक परिवार मुक्त गवर्नमेंट हो, भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नमेंट हो, एक विकास युक्त गवर्नमेंट हो। हम बहुत प्रयास किया है। आज मैं कह सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी पहली बार जम्मू कश्मीर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सीट्स हम हासिल किया है। मगर मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं हम जो 100 दिन का मोदी जी 30 गवर्नमेंट का 100 डेज का जो काम किया है इसका नतीजा आज जम्मू कश्मीर में भी दिखते हैं, वैसे ही हरियाणा शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक तैयारे में बम की मौजूदगी की झूठी इत्तला ने सनसनी फैला दी। गुज़िश्ता रोज हैदराबाद से कोयम्बटूर के रास्ते चेन्नई जाने वाले इस तैयारे को रोककर इसकी तलाशी ली गई। कई घंटों की तलाशी के बावजूद ये इत्तला झूठी साबित हुई, जिस पर तमाम मुसाफिरीन और ओहदेदारों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने इस वाक़े की इत्तला मिलने पर तहक़ीक़ात शुरू कर दी और वह फोन कॉल करने वालों की तलाशी कर रही है। कदावर कारोबारी और अरबपति रतन टाटा का बुध की रात इंतकाल हो गया। उन्हें सेहत की मसाइल के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। उनके इंतकाल के बाद सब जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी दौलत छोड़ रखी है और उनकी बड़ी कारोबारी सल्तनत का मालिक अब कौन होगा। रतन टाटा को सबसे कामयाब कारोबारियों में शुमार किया जाता है। उनकी क़यादत में टाटा ग्रुप ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी शनाख्त बनाई। 1991 में ग्रुप की कमान संभालने के बाद वो 2012 तक इसके चेयरमैन रहे। टाटा ग्रुप का कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है। घर की सुई से लेकर हवाई जहाज तक ये नाम हर जगह मौजूद है। इस ग्रुप में 100 से ज्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां शामिल है और उनका कुल कारोबार तकरीबन $300 अरब है। अगरचे रतन टाटा की कुल जायदाद तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये रकम उनकी दुनिया भर में फैले कारोबार के मुकाबले में कम लग सकती है। ताहम उन सब की बड़ी वजह यह है कि वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हत्या करते हैं, जिसकी मिसाल उनकी इंसानी दोस्ती और समाजी खिदमत में नजर आती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के नतायज के बाद सियासी बहस का सिलसिला जारी है। हरियाणा में बीजेपी ने 47 सीट जीत कर लगातार तीसरी बार हुकूमत बनाई है। इस मौके पर कांग्रेस के कौमी तर्जुमान उदित राज ने बुध 9 अक्टूबर को पार्टी की शिकस्त और राहुल गांधी की मकबूलियत पर तबादला ख्याल किया। उदित राज ने कहा, वजीर आजम मोदी कांग्रेस के तमाम कामों को खत्म कर रही है। राहुल गांधी की मकबूलियत पर बात करते हुए उन्होंने दावा किया है कि इसमें कोई कमी नहीं आई है और इस बार कांग्रेस की वोटों में 10% इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को तकरीबन बराबर वोट मिले हैं। साथ ही उदित राज ने सवाल उठाया कि जम्मू कश्मीर में वजीर आजम मोदी कहाँ हैं, जिनसे उनकी हुकूमत की कारकर्दगी और अवामी राब्ते पर तनकीद जाहिर होती है। हाँ, ये बात तो है कि वहाँ पर बीजेपी को अच्छी मात मिली है और अगर 2014 की तुलना में देखा जाए बीजेपी को तो बीजेपी का परफॉर्मेंस लगभग वही रहा। तो 370 धारा 370 फ्लॉप हुआ, राम मंदिर फ्लॉप हुआ। ये दो बड़े मुद्दे जो इनके फ्लॉप हुए तो वोट मिल कहाँ से रहा। बेरोजगारी एक तरफ है और
महंगाई दूसरी तरफ है, किसान की नाराजगी है और एमएसएमई जो मीडियम स्केल के बिजनेस है वो पूरा देश के अंदर खत्म हो चुका है। तो फिर इनको वोट मिल कहां से रहा है? ये बेईमानी से ईवीएम से जीत रहे हैं, ईवीएम से चुनाव। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के नताइज से हैरान कांग्रेस ने एक नुमाइंदा वफ्द ने दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस के लीडर पवन खेरा ने बताया कि उन्होंने 7 असेंबली हलकों की तहरीरी शिकायत दी है, जबकि 13 मजीद हलकों में भी शिकायत मिली है, जिसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को फराहम की जाएगी। पवन खेरा ने कहा है कि हमारी उम्मीदवारों ने ईवीएम की बैटरी के बारे में शिकायत की है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन इन मशीनों को जांच मुकम्मल होने तक सील करेगी। ये मुतालबात इस बात की अक्कासी करते हैं कि कांग्रेस की इंतखाबी अमल की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए मुतफक्किर है। आज केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए, जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को, और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। सर, इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भी लिखा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 विधानसभाओं से शिकायतें आई हैं, 7 से पूरे दस्तावेज आए हैं, और वो दस्तावेज अभी हम आपके सामने आपको जारी भी करने वाले हैं, जिसमें करनाल है, डबवाली है, रेवाड़ी है, पानीपत सिटी है, होडल है, कालका है और नारनौल है। ये तो जो लिखित जो दस्तावेजों के साथ जो हमने दिए दस्तावेज हैं, ये सारे हम वहाँ दे चुके हैं, लेकिन अभी 13 और हैं जो शिकायतें आ रही हैं, और वो भी हम अगले 48 घंटे में दे देंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ का भी पूरा मसला जो राजनांदगांव है, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो भी इसी तरह की कंप्लेंट्स थी, उसका भी हमने इन्हें फिर से स्मरण कराया। आप उदय भान जी, एक मिनट उदय भान जी पूरा जिस तरह से पवन खेड़ा जी ने बताया, सारा इलेक्शन कमीशन के सामने सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है, और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई हैं। और जो 99%, 95%, 90 से जो अबव हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही बीजेपी का सहारा हुआ है। जहाँ 60 और 70% है वहाँ पे ये नहीं जीत रहे। तो ये एक पूरा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये कारण क्या है, और ये 99% कैसे बैटरी चार्ज हो गई। जब पूरा दिन बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई भी आप मोबाइल के रखें तो पूरा दिन आप रखोगे तो वो निश्चित तौर से वो डाउन होगी, 99% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये पूरा संदेह का कारण बना हुआ है। उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इलेक्शन कमीशन की ये साख का भी सवाल है, इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या कारण है, और हमें पूरे जनता के समक्ष इस बात को रखें कि इसका क्या कारण है। ये पूरा संदेह का, और वीवीपैट की पर्चियाँ मिलान करने के लिए आरओ को बहुत सारी विधानसभा में कहा गया, लेकिन आरओ ने
उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और वीवीपैट की पर्चियां नहीं मिलाई उस मशीन के साथ में। एक ये बहुत बड़ा कारण है कि वीवीपैट की पर्चियां हम ये चाहते हैं, हमने कहा है कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। एक मिनट हुड्डा जी बोलेंगे। हुड्डा साहब बोलेंगे। देखिए, आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सारे सर्वे ये आए थे लेकिन ये हुआ। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। तो एक डाउट क्रिएट किए हुए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताई कंप्लेंट है 20 के करीब है, बहुत सारी तो रिटर्न कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती की जाए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट्स हमने दी हैं और इलेक्शन कमीशन ने अश्योर किया वो सारे कंप्लेंट देख रहे हैं और जेल का। डॉक्टर साहब, ये तो इसी से शिकायत आप लोगों की हुई है, लेकिन अगर इस आप लोग की जो शिकायत है उसको अगर खत्म। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ 360 गोले फायर किए हैं, जिनमें से तकरीबन 220 इजरायली इलाके में पहुंच गए हैं। आईडीएफ ने अपनी टेलीग्राम पोस्ट में कहा है कि आज रात 11 बजे हिजबुल्लाह की शिद्दत पसंद तंजीम ने लिबनान के इजरायली सरजमीन की तरफ 360 गोले फायर किए, जिनमें तकरीबन 220 गोले इजराइल में दाखिल हुए। आईडीएफ ने मजीद कहा है कि वो इजराइल और उसके लोगों की हिफाजत करता रहेगा, जिससे उनके अज़्म इरादे की अक्कासी होती है। वो किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। आखिर में हेडलाइंस फिर। वजीर आला रेवंत रेड्डी का DSC 2024 के तकरीब में इजहार ख्याल। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी का बीजेपी के इंतखाबी मुजाहिरे पर बयान। शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे में बम की झूठी इत्तला से सनसनी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर इंतखाबात के नताइज, उदित राज का बयान। हिजबुल्लाह के जानिब से इजराइल पर गोलों की बारिश, IDF की रिपोर्ट। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज।